MQM کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے مطالبہ کیا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کی عمر کی حد 45 کے بجائے 35 سال مقرر کی جائے۔ الطاف حسین نے 20 سال کی عمر میں طلبہ تنظیم قائم کر کے نوجوانوں کو سیاست کے لیے پلیٹ فارم فراہم کر دیا تھا۔ دیکھتے ہیں اس بارے میں محمد علی حفیظ کی رپورٹ۔ MQM کراچی تنظیمی کمیٹی کے زیر اہتمام کوٹاری پارک کلفٹن میں شہدا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مستقل تبدیلی عوام اور خصوصاً نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے بعد آئے گی۔ MQM کے قائد الطاف حسین نے 20 سال کی عمر میں طلبہ تنظیم قائم کی اور نوجوانوں کو میئر، نظامت اور گورنرشپ کے عہدے پر فائز کیا۔ انہوں نے کہا کہ MQM کے شہید کارکنوں کی قربانی کی بدولت آج حق پرستی کا فلسفہ پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ فاروق ستار نے مطالبہ کیا کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کی عمر کی حد 35 سال مقرر کی جائے۔ قائد تحریک الطاف بھائی اور MQM کی طرف سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے لیے بھی عمر کی اس قید کو کم کر کے 35 سال تک لایا جائے، اور اگر 35 سال کا کوئی نوجوان بھی اگر یہ اہلیت رکھتا ہو کہ وہ پاکستان کی قیادت کر سکتا ہو، پاکستان کو تعمیر کر سکتا ہو، تو پھر وزارت عظمیٰ اس نوجوان کے حوالے کرنی چاہیے۔ MQM کراچی تنظیمی کمیٹی کے زیر اہتمام مختصر وقت میں کی جانے والی شہدا کانفرنس میں 10,000 سے زائد افراد نے شرکت کی، جبکہ MQM کے شہید کارکنان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے معروف اداکار عمر شریف نے کہا کہ شہیدوں کی قربانیوں سے انقلاب آتا ہے۔ یہ جو سہرے باندھنا چاہتے تھے جن سروں پر، وہ سر انہوں نے قربان کیے ہیں تحریک کے لیے، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ شہدا کانفرنس میں خوشبخت شجاعت، آغا مسعود حسین، شبر زیدی اور دیگر نے خطاب کیا۔ آخر میں کراچی تنظیمی کمیٹی کے انچارج حماد صدیقی نے حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ زندہ قومیں کبھی اپنے شہیدوں کو فراموش نہیں کرتی۔ اس ملک میں انقلاب الطاف حسین کی قیادت میں ہی آئے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے تحت کراچی میں شہدا کانفرنس جاری ہے، جس سے سماجی رہنماؤں، بزنس کمیونٹی اور معروف فنکاروں نے خطاب کیا ہے۔ کراچی میں جہانگیر کوٹھاری پریڈ میں جاری کانفرنس سے معروف فنکار عمر شریف، انور مقصود، فاطمہ سریا بھجیا، ماہر اقتصادیات شبر زیدی سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ MQM کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ الطاف حسین کے سوا کسی کے پاس تبدیلی کا پروگرام نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جاگیرداروں اور وڈیروں کو ایک ہی گیند پر آؤٹ کرنا ہوگا۔ وہ کراچی میں شہدا کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ الطاف بھائی اب یہ کہتے ہیں کہ ایک بال پر سب کو آؤٹ کرنا پڑے گا، اگر سب کو آؤٹ ایک بال پر نہیں کیا، اور یہ بھی آخری بال ہے جو ہمارے پاس بچی ہے، یہ آخری بال ہے جو ہمارے پاس بچی ہے، شارجہ کا چھکا لگانا ہوگا اور اس ایک بال پر سب کو آؤٹ کرنا ہوگا۔ یہ تو دنیا کہتی ہے کہ ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ آج الطاف بھائی نے یہ جو شفاف تالاب یہاں پر جمع کیا ہے، لوگوں کو متحد، منظم اور متحرک کیا ہے، تو انہوں نے اس محاورے کو عملی طور پر الٹا کر کے دکھایا ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو اچھا کر سکتی ہے۔ MQM کے رہنما فاروق ستار، ان کا کہنا ہے کہ متحدہ ایک بال پر ساری وکٹیں لینے کو تیار ہے۔ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو سیاست سے باہر پھینکنا ہوگا۔ کراچی میں شہدا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 1-2 وکٹوں سے کام نہیں چلے گا، آخری بال MQM کے پاس بچی ہے جس پر ساری وکٹیں لینی ہوں گی۔ فاروق ستار نے کہا کہ وڈیروں اور جاگیرداروں کو آؤٹ کر کے سیاست سے باہر کرنا ہوگا۔ نو بال کرانے والے اور میچ فکسرز کو MQM کی صفوں سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شارجہ کا چھکا لگانے کا وقت آ گیا ہے، نظام کو تبدیل کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے زیر اہتمام باغ ابن قاسم میں شہدائے حق کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں۔ تاریخی جناح گراؤنڈ کا انتخاب کیا، اپنے شہید کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی سمت سے متوالے ہیں ہم
का सौदा नहीं करेंगे, लहू का सौदा नहीं करेंगे, लहू का सौदा नहीं करेंगे। हम अपनी रहते डटे रहेंगे, लहू का सौदा नहीं करेंगे। ख्याल मोहकम अटल इरादा, वफा की राहों में बेमहावा, सदाकतों का अलम उठाए रवा है, अब हम नहीं रुकेंगे। सदाकतों का अलम उठाए रवा है, अब हम नहीं रुकेंगे। लहू का सौदा नहीं करेंगे, लहू का सौदा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लहू का सौदा नहीं करेंगे। अभी तो हम सर सजा रहे हैं, हमारे मखमल सजा रहे हैं, मगर ये सुन लो संसार, हमारे जज्बे नहीं दबेंगे, मगर ये सुन लो संसार, हमारे जज्बे नहीं दबेंगे। लहू का सौदा नहीं करेंगे, लहू का सौदा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लहू का सौदा नहीं करेंगे।
करेंगे लहू का सौदा नहीं करेंगे हम अपने रहते डटे रहेंगे लहू का सौदा नहीं करेंगे लहू का सौदा नहीं करेंगे लहू का सौदा नहीं करेंगे। और शिद्दत से तालियां होनी चाहिए। मैं भी हैदराबाद रिजवी भाई के साथ वहां खड़ा था और उनसे कुछ गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने एक जुमला अभी यहां पे कहा। हैदर भाई ने एक जुमला कहा कि मुझे करबला जो है वो समझ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट्स के ऊपर होने वाले ऑपरेशन के बाद आई। मैंने एक जुमला इनसे कहा कि उस वक्त मुहर्रम है ना, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इमाम अली मकाम चाहते अगर अपने हाथों को उठा देते तो यकीनन फरिश्तों की फौज जो है वो आपके लिए आ जाती, और अगर चाहते इमाम उस वक्त तो मफाहिमत की सियासत के लबादे को मफादात के बरहना जिस्म पर चढ़ाकर अपनी जिंदगी को दवाम बख्श सकते थे। लेकिन इमाम ने रहती दुनिया तक एक पैगाम दे दिया कि वक्त के यजीद आकर कितनी ही बात कर ले, ना हमारा सर कल झुका था, ना आज झुका है, न कभी झुकेगा। मैं गुजारिश करूंगा, बहुत काबिल एहतराम हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो बड़ी गहरी निगाह है, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। ये कहूं तो गलत ना होगा कि तजुर्बे की, मुशाहिदात की और इल्म की एक यूनिवर्सिटी है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें मोहतरम जनाब आगा मसूद हुसैन साहब से मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाएं और इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हियो या क़य्यूम रहमान व रहीम जुल जलाल वल इकराम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ MQM का, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, कि उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे ये इज़्ज़त दी और मुझसे ये कहा कि मैं अपने ख़ैरात का इज़हार करूँ। मैं ज़ाहिर है कि मेरी सोच में कुछ तामीरी तनकीद भी होती है, कुछ कोशिश इस बात की होती है कि कोई राह भी दिखलाई जाए ताकि निजात का कोई सिलसिला बन सके। लेकिन बहरहाल मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूँ कि इस वक्त जो लोग भी सामने बैठे हैं, जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब की काबिल एहतराम बहन भी तशरीफ रखती हैं, इन लोगों ने इतनी कुर्बानी दी है कि मुझे 30 साल हो गए सहाफत में लिखते हुए, बोलते हुए, टेलीविजन पर, और मैं समझता हूँ निस्फ से ज़्यादा दुनिया हमने देखी। हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हमें बुलाया जाता है, हम जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में से हम उनका खिताब भी करते हैं, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। मैं समझता हूँ कि जो तकलीफें, जो तशद्दुद MQM के रहनुमाओं ने, MQM के कारकुनों ने बर्दाश्त किया है, मैं समझता हूँ कि तारीख में ये वही लोग हैं कि जो तारीख के 4 बड़े इनकलाब लेकर आए, और ये उनके ही कारकुन हैं कि जिनको आज हम सलाम पेश कर रहे हैं, जिनकी हम दुआएं कर रहे हैं कि खुदावंद ताला उनके लवाकीन को और जो मौजूद हैं खुदावंद ताला उनकी उम्र दराज करे, ताकि ये वो हक की जदोजहद जो आज से 32 साल पहले शुरू हुई थी, ये जदोजहद जो है वो जारी और सारी रह सके, क्योंकि इसी जदोजहद में आपके इंसानी हुकूक के सारे मसाइल वाबस्ता हैं। और यही इंसानी हुकूक की जंग अभी जुनेद, जो कि इतनी खूबसूरत कॉम्पेयर भी हैं और मजहबी प्रोग्राम करते हैं, बड़े दिलनशी अंदाज में प्रोग्राम करते हैं, तो करबला का सारा वाक़या भी तो ह्यूमन राइट्स का वाक़या था, इंसानी हुकूक का वाक़या था, और इसी इंसानी हुकूक के खातिर उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। आज मैं देख रहा हूँ कि जम्मे गफीर नौजवानों का यहाँ मौजूद है, और ये नौजवान वो हैं कि जो पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं, इन नामसाइद हालात में पाकिस्तान तामीर कर रहे हैं
کہ जबकि आपकी इकोनॉमी की हालत बहुत गिर चुकी है और इन हालात में पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं कि जबकि मैं ये समझ रहा हूँ और मेरी ये आंखें देख रही हैं कि इनका वो उस लिहाज से समाज की तश्कील और तामीर नौ जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है और इसकी तामीर नौ, इसकी तश्कील, इसके पूरे तत्व पूरा एक सिलसिला होता है, उसमें भी मैं समझता हूं कि हमें MQM की तारीफ करनी चाहिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तारीफ करनी चाहिए कि वो उनको सहारा दिए हुए हैं, वो उनको दिलासा नहीं देते बल्कि उनको सहारा देते हैं और सहारा इसी को कहते हैं इन्फाक फी सबीलिल्लाह, कि जो अल्लाह की राह में इन्फाक करते हैं, शेयर करते हैं, अपने ख्यालात शेयर करते हैं, अपने माल से शेयर करते हैं, अपने फिक्र से शेयर करते हैं। तो ये वो लोग हैं कि जिनके साथ शेयरिंग हो रही है और उनको एक सहारा मिला हुआ है। आप अगर नजर दौड़ा के देखें कि दुनिया के 4 बड़े इनकलाब आए, एक इनकलाब तो रूस का इनकलाब था, फिर फ्रांस का इनकलाब था, फिर चीन का इनकलाब था, फिर इनकलाब इमाम ख़ुमैनी के साथ आया और ये इनकलाब ईरान का इनकलाब था। और आप यकीन करें कि उन चारों इनकलाब में हथियार इस्तेमाल हुए, तशद्दुद इस्तेमाल हुआ, लेकिन वाहिद इनकलाब ईरान का ऐसा था कि जिसमें निहत्ते लोग आए और वो सीना सफर हुए और वो इनकलाब लेकर आए इमाम ख़ुमैनी की क़यादत में। और आज मैं वही मंजर देख रहा हूं कि ये वही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नौजवान हैं कि जिनके पास कोई हथियार नहीं है, वो सीना सफर हुए उन ताऊती क़ुव्वतों से जो 32 साल में इनका इस्तेसाल करते रहे और इनके पास कोई हथियार नहीं था। इतनी बड़ी तादाद में ये लोग जो हैं ये शहीद हुए। मैं एक मुख्तसर अरसे के लिए मैं अपनी वो नहीं कर, मैं तो बहुत ही मामूली, सब जानते हैं कि मैं जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे किसी की सिले सताइश की जरूरत नहीं है, ना ही मैं कोई शख्स पाकिस्तान का ये नहीं कह सकता कि हमने मरात ली हो, मरात के तहत हमने किया हो या लिखा बोला हो या तकरीर की हो। लेकिन जब मैं एक छोटे से अरसे के लिए जब मैं वजीर बना तो मैंने एक खुफिया इदारे से कहा कि मुझे जरा फाइलें दिखलाएं कि वो कौन कौन लोग थे जिनके साथ ये तशद्दुद किया गया। आप यकीन करें इस वक्त भी जब मैं तकरीर कर रहा हूँ मैं उन लोगों को जानता हूँ कि जिनके साथ क्या हुआ, वो इस वक्त भी मौजूद हैं, किस तरीके से उनकी टांगें चीरी, किस तरीके से उनको उनके जिस्म को इनका दागा गया और किस तरीके से उनको उल्टा टंगाया गया। और उसमें माफ कीजिएगा उसमें जमहूरी हुकूमत भी शामिल थी जो चाहती थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से अपना आप इलाक़ जो है खत्म कर लें, उस इलाक़ को खत्म करने के बाद हमारे साथ शामिल हो जाए। क्या हुआ? उन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, जुल्म बर्दाश्त किया और इसके बाद भी वो अपने ही मौक़िफ़ पर, वो मौक़िफ़ कि जो अल्ताफ हुसैन साहब ने दिया था उस मौक़िफ़ पर कायम रहे और उस मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए आप देखें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कितनी मतलब ये कि तादाद में लोग जमा है। खुशी होती है कि जब मैं नौजवानों को देखता हूं कि इनके अंदर भरपूर जज्बा है, इनके अंदर जोश है, ये काम करना चाहते हैं, ये एक तामीर करना चाहते हैं, ये एक समाज की तामीर के लिए बेताब है, बेचैन है और यही बेचैनी जो है यही मुत्तहिदा मूवमेंट इनको चैनलाइज करके इनको आगे की तरफ ले जा रही है। और यही चैनलाइजेशन अगर इस तरीके से जारी रहा तो मैं समझता हूं कि ये एक फतेह मंदी से ये हम किनार होंगे। आपको मालूम है कि ये पाकिस्तान आइंदा 10 साल में आप एक इंतहाई तकलीफदेह हालात से गुजरने वाले हैं। हो सकता है कि मेरी ये बात आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि 10 साल तक अमेरिका इस अफगानिस्तान में आइंदा रहेगा। और आज से जब ये बात मैं आपसे कर रहा हूं, जो मुसीबतें इस पाकिस्तान पे आने वाली हैं, ये वही साम्राज्य जो है ये आप पे हुकूमत न सिर्फ हुकूमत करेगा बल्कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेगा। ये ऐसी सूरत हाल है। उस वक्त मैं समझता हूं कि नौजवानों का बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए। ये पाकिस्तान बड़ी खूबसूरत चीज है, पाकिस्तान एक नियामत है। यहाँ दुनिया के 3 बड़े पहाड़ जो हैं पाकिस्तान की सरजमीन को चूम रहे हैं। ये एक ऐसे लहलाते हुए सरजमीन है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं जब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हम लोग जाते हैं, अपने लेक्चर देने के लिए जाते हैं, तो मैं देखता हूं कि उस पस मंजर में पाकिस्तान तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद, तमाम समाजी बेचैनी के बावजूद, इक़्तिसादी बेचैनियों के बावजूद भी और उस ज़हनी और परेशानी के बावजूद भी ये पाकिस्तान जो है हमें सबसे ज्यादा अजीज है। जाइए हिंदुस्तान में मस्जिद देखिए, आप जामे मस्जिद दिल्ली करीब मुसलमानों की हालत देखिए, आप एक वक्त का खाना नहीं खा सकेंगे मुसलमानों की हालत देख के। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान नेमत है। इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, इस पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, इस पाकिस्तान को मुस्तकम करने की है ये आपकी जिम्मेदारी है, ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि जो इस वक्त इस पंडाल में बैठे हैं और जो इसके बाद जाके अपनी गुफ्तगू अपने साथियों से करेंगे, क्योंकि इस वक्त इस पंडाल में ऐसे लोग भी हैं कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन नहीं है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपनी एक वैल्यू शो की है, एक अपने अक़दार को शो किया है कि वो लोग भी कि जो हमारे ख्यालात से इत्तेफाक नहीं करते वो आए,
सुने हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, इस मुल्क की तामीर के लिए हम क्या करना चाहते हैं, हम किस तरीके से आपके वो मसाइल हैं, वो समाजी मसाइल हैं कि जो हल नहीं हो रहे, वायदे के बावजूद भी हल नहीं हो रहे। लोगों से कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट चेंज। क्या चेंज आप देख रहे हैं? मैं उस चेंज को देख रहा हूं कि लोग पिस रहे हैं, और पिस के बाद ये कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर देम, देयर इज नोबडी टू गिव देम जॉब, दे आर टोटली फ्रस्ट्रेटेड। इस फ्रस्ट्रेशन को मुत्तहिदा गवर्नमेंट जो है वो अपने तरीक़ेकार से, अपने सोच से, अपनी फिक्र से, अपने अफकार से वो चाह रही है कि उनको एक रास्ता दिखाया जाए, इसको चैनलाइज किया जाए। खुदा ना खास्ता ये नौजवान अगर बिखर गए, ये नौजवान अगर मुंतशिर हो गए, अगर इनके ख्वाब टूट गए, इनके ख्यालात टूट गए, इनके ख्यालात बिखर गए और उनको कोई एक्सप्लॉइट कर गया, तो मैं समझता हूं कि फिर पाकिस्तान के लिए अमेरिका से ज्यादा मुसीबतें पाकिस्तान देंगी। फिर एक बार मुत्तहिदा गवर्नमेंट के कायदीन को, जिनके बारे में मैंने कहा कि मैंने ऐसा तशद्दुद किसी पे भी नहीं देखा जो MQM के लोगों पे हुआ, कारकुनों पे हुआ, उनके कायदियों पे हुआ, और उसके बाद उन्होंने आज इस मुत्तहिदा गवर्नमेंट को जिंदा रखा। कितनी मेरा ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी जो है पाकिस्तान की अहम ब्यूरोक्रेसी है कि जिसका आपको अंदाजा नहीं है। लोग सियासतदानों को तो बदनाम करते हैं कि भाई सियासतदान बुरे हैं, सियासतदान जो है वो काम नहीं करते, बहुत जल्दी जो है वो मार्शल की गोद में बैठ जाते हैं। ठीक है, मुल्क के बचाने के लिए हो सकता है बाद लोग ऐसा करें कि मार्शल के साथ वो मफाहमत कर लेते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को आप देखिए। एक हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद में, अंसार अब्बासी साहब, आपने नाम सुना होगा, आजकल बहुत तनकीद करते हैं हुकूमतों पे। उन्होंने आज से 4 दिन पहले एक रिपोर्ट शाया की है, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में जो ब्यूरोक्रेट हैं, 48 ब्यूरोक्रेट का ताल्लुक सिर्फ पंजाब से। आप मुझे बताइए, अंसार अब्बासी खुद एक पंजाबी हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, आप मुझे बताइए जब उन्होंने इतनी बड़ी बात लिखी, बाकी 3 कर रहे हैं, ये बात आज से 30 साल पहले मुझे अच्छी तरीके से याद है। जंग में मैं बैठा हुआ था, हमदान अब्दुल खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत बड़े साफी थे, डॉन के जो थे। उस वक्त अल्ताफ साहब आए और उनके साथ अजीम तारिक साहब भी तशरीफ रखते थे, वो भी आए और उन्होंने कहा कि देखिए हम पंजाब के खिलाफ नहीं है, हम किसी सूबे के खिलाफ नहीं है, लेकिन तादाद देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी रिक्वायरमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लोगों को हक मिलना चाहिए, वो हक मिलना। 30 साल पहले अल्ताफ साहब ने ये कहा था कि ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होती है उसके तहत लोगों को आप हक, और सूबों में, छोटे सूबों में जो बेचैनी है, उस बेचैनी को दूर करने का वाहिद तरीका यह है कि यू ट्राई टू फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट यू आर नॉट फॉलोइंग द डिक्टेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दिस इज टुडे अंसार अब्बासी इज राइटिंग कि इतने बड़े तादाद में कई सूबों की जो है, और सब बलूचिस्तान तो बिल्कुल सिफर है, उसमें बलूचिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं है। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि जब आप ये नाइंसाफियां करेंगे, जब आप लोगों को हुकूक नहीं देंगे, जब आप सारी चीज को ग्रैब कर लेंगे और फिर आप कहेंगे कि हम पाकिस्तान को मुस्तहकम करना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे आप बताइए, हाउ यू गोइंग टू कंसोलिडेट पाकिस्तान सॉवरेनिटी एंड पाकिस्तान इंडिपेंडेंस? कैसे आप करेंगे? मैं कहता हूं इस तरह हो ही नहीं सकता। आप अदल कायम ना करें, समाजी अदल कायम ना करें, आप सियासी अदल कायम ना करें, आप लोगों के ह्यूमन राइट्स पर उनको अदल ना दें, फिर आप क्या देना चाहते हैं? आज ये जो इज्तिमा हो रहा है नौजवानों का, आप सुन लें कि ये हक आपको मिलना चाहिए, ये हक बलूचिस्तान को मिलना चाहिए, ये हक जो है खुद पंजाब के मफरूकुल हाल सूबों को मिलना चाहिए, साउदर्न सूबों को मिलना चाहिए, ये सिंध को मिलना चाहिए और ये पख्तूनख्वा को भी मिलना चाहिए। ये सब लोगों को सोचना चाहिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो आवाज है वो किसी लिसानी आवाज नहीं है, ये किसी उर्दू बोलने वालों की आवाज नहीं है, ये आवाज पाकिस्तान के उन लोगों की आवाज है कि जो अपने हुकूक की तलाश में कभी एक दरवाजे पर जाते हैं, कभी दूसरे दरवाजे पर जाते हैं, कभी उनको जमहूरियत के नाम पर धोखा जाता है और कभी उनको ये कहा जाता है कि नहीं हम एक 18वीं तरमीम के जरिए आपके हुकूक वापस कर देंगे। कोई हुकूक वापस नहीं किए, सुन लीजिए आप। वही आज वही सूरत हाल है जो सूरत हाल आज से 3-4 साल पहले थी। मैं आपकी खिदमत पे यर्ज करता हूं कि ठीक है कि माशाअल्लाह जो है वो नहीं आना चाहिए, मैं भी इसकी हिमायत करता हूं। लेट द डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल इन पाकिस्तान, बट हु आर द पीपल हु आर गोइंग टू derail the democracy? It is the army who is going to derail the democracy, or it is the politicians that are responsible to derail the democracy in Pakistan?
नहीं काम कर रहे, आप आवाज नहीं सुन रहे लोगों की। प्रेसिडेंसी में आप बैठे हुए हैं, कोई परवाह भी नहीं है किसी को, पार्लियामेंट बनी हुई है, किसी को कोई परवाह नहीं। मैं ये कहता हूं कि दिस इज द टाइम कि लोगों को एहतसाब करना चाहिए कि एहतसाब क्या होता है, किस तरीके से लोगों का एहतसाब करना चाहिए। और अगर एहतसाब नहीं करेंगे तो आप रोते रहेंगे, फरियाद करते रहेंगे, बहुत से लोगों के आप नाम लेकर रोएंगे और आपका आंसू पहुंचने वाला भी कोई नहीं होगा। ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? हम तो उम्र के एक ऐसे हिस्से में आ गए हैं कि ठीक है कि हमें ये सोचने का जो है ना, हमें अल्लाह पाक ने एक हक दे रखा है। हम समझ गए कि दुनिया क्या है, ये खेल क्या है, ये गोरख धंधा क्या है। लेकिन इसके बाद भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि जो इधर बैठे हुए हैं, कि खुदा के लिए सोचें और अपने हुकूक के लिए आप लड़ें और अच्छी गुफ्तगू करें, ऐसे तरीके से गुफ्तगू करें। सोच की तरक्की जो है वो इंसान के अच्छे ख्याल से होती है, पॉजिटिव थिंकिंग से होती है। अब मैं आखिर में, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं बोलने का आदी हूं, तो मैं जब बोलता हूं तो फिर मेरा ख्याल है मुझे बड़ा मसला हो जाता है कि मैं अपने आप को स्टॉप करूं। लेकिन मैं बस चंद अल्फाज और कहूंगा। साहब से मेरी मौजूदाना गुजारिश है, अभी थोड़ी बहुत बात हो रही थी। आदिल सिद्दीकी साहब बैठे हैं, बाबर गौरी साहब बैठे हैं हैदराबाद से। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सिटिंग हियर टुडे एंड आई वुड लाइक एक्चुअली टू टेल देम कि देखिए, जब तक कि आप नौजवानों को एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं होगी, सूरत हाल में तब्दीली नहीं आएगी। आप सिंबल हैं। 30 साल पहले आप एक अलामत के तौर पे उभरे कि हम जागीरदारों, सरमाएदारों से मुख्तलिफ हैं और हम चाहते हैं कि इनके अंदर हम कुछ तब्दीली लेकर आए। ठीक है, जागीरदारी निज़ाम और सरमाएदारी निज़ाम को तोड़ना इतना आसान नहीं है और इसके लिए बड़ी कुर्बानी की जरूरत है, जो आप दे रहे हैं और दे चुके हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त कराची में और सिंध के बाद इलाकों में 700 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जो नाकारा हैं और सिख इंडस्ट्रीज पड़ी हुई हैं। मैं खास करूंगा, जनाब आदिल सिद्दीकी साहब हैं, बाबर गौरी साहब हैं, सत्तार गौरी, जनाब हमारे फारूक सत्तार भाई बैठे हैं। मैं इकबाल का शेर पढ़ना चाहूंगी। शहादत है मकसूद और मतलूब मोमिन, शहादत है मतलूब और मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अल्ताफ हुसैन भाई जैसा फकीराना दरवेशाना मिनिश इंसान, जिसने ना अपने खानदान के लिए कुछ मांगा, ना अपने भाई बहनों के लिए, ना अपने लिए कुछ मांगा। शहीद वो थोड़ी होता है जो किसी वजारत के लिए शहीद हो जाए। याद कीजिए, शहीद वो नहीं होता है जो किसी ओहदे के लिए शहीद हो जाए। शहीद वो होता है जिसके खानदानों का लहू उस तहरीक में शामिल होता है। राब्ता कमेटी, मेहमानाने गरामी, जिसमें प्रोफेसर परवेज भुदबॉय भाई, आगा मसूद, उमर शरीफ, मोहतरमा फातिमा सुरैया बजिया और जो हमारे मेहमान यहां से रुखसत हुए, आज के इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले तहरीकी साथी, ख़वातीन और हजरात और तहरीकी नौजवान साथियों, नौजवान दोस्तों, मौजूद सहाफ़ी हजरात, फोटोग्राफर और कैमरामैन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं कायदे तहरीक अल्ताफ भाई की जानिब से आज के इस प्रोग्राम में, इस पुरवकार तकरीब में मेहमानाने गरामी बनने और यहां तशरीफ लाने पर अपने तमाम मेहमानों को और तमाम जो यहां पर नौजवान और तहरीकी साथी अहलियान कराची, अहलियान सिंध और अहलियान पाकिस्तान हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। फिर ये यौम शोहदा है और यौम शोहदा कॉन्फ्रेंस है, तो आपसे ये मालूम करना भी जरूरी है कि, और मुझसे जो पेशरो यहां पर मेहमान आए और उन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी आपके सामने है। तो आज का ऑर्डर ऑफ द डे
यही है कि आज जो बातें की जाएं वो खरी खरी बातें की जाएं, आज खुलकर गुफ्तगू की जाए। गोया कि आज बातों शातों में बात करने की बजाय, टेलीनॉर की पॉलिसी इख्तियार करने की बजाय आज जोंग की पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में परवेज हुदभाई भाई ने तो इस पॉलिसी पर और बाकी जो गुफ्तगू करने यहां मेहमान आए उन्होंने भी जोंग की पॉलिसी ही को इख्तियार किया और उन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी और सब कह दो की पॉलिसी पर अमल किया और जो उनके दिल में था वो सब कह दिया। मैं भी तहरीक के शोहदा को, ये कितना खूबसूरत इत्तफाक है, ये हुस्न इत्तफाक है कि ये माह मुहर्रम है, ये शोहदाए करबला का महीना है, ये शहीदों का और शहादतों का महीना है। आज हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहां जमा हुए हैं और आज हमें यह सआदत शोहदाए करबला के सदके में माह मुहर्रम में यह सआदत मिल रही है। मैं इस मौके पर शोहदाए तहरीक के पाकिस्तान को भी याद करूंगा और उन्हें भी जबरदस्त खराज अकीदत पेश करूंगा कि उनकी लाजवाल कुर्बानियां ना होती तो आज हम जिस आजादी की बात कर रहे हैं शायद वो आजादियां भी हमें नसीब ना होती। मैं उन्हें भी खराज अकीदत पेश करूंगा क्योंकि ये शोहदा का महीना है, ये शोहदाए करबला का महीना है। और जब हम शोहदा की बात कर रहे हैं तो मैं अपने शहीदों को यह बावर कराना चाहूंगा कि हम जो शेर कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के लिए पढ़ते हैं और उनके लिए जो बात कहते हैं, आज वही शेर मैं अपने शोहदा एक एक शहीद की नजर भी करना चाहूंगा। और जब शोहदा का जिक्र होगा तो हम मेहरान बेस वाक़े में जिन अफवाज पाकिस्तान के जिन अहलकारों ने जानों का नजराना दिया, आज हम उन्हें भी खराज अकीदत पेश करेंगे। आज हम नेटो के हमले में शहीद होने वाले जो अफवाज पाकिस्तान के अहलकार हैं, हम आज उन्हें भी खराज अकीदत पेश करेंगे क्योंकि हम ये समझते हैं कि इन तमाम शोहदा ने इसलिए अपनी जानों का नजराना दिया कि हम चैन और सुकून के साथ और आजादी और खुद मुख्तारी के साथ और इज्जत के साथ सर उठाकर हम जिंदगी गुजार सकें। ये उनकी शहादतों का, ये उनकी कुर्बानियों का मकसद है। हम ये समझते हैं और मैं ये शेर पढ़ूंगा कि हम अल्ताफ भाई के लिए कहते हैं कि डिस्टेंस डज नॉट मैटर, फासले हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, फासले हमारे लिए कोई मानी नहीं रखते। मैं एक एक शहीद के लिए कहूंगा कि वो दूर है तो क्या हुआ, वो दूर है तो क्या हुआ, वो दूर है तो क्या हुआ, दिलों में है बसा हुआ। हम अल्ताफ भाई के लिए भी ये शेर पढ़ते हैं, हम अपने शहीदों के लिए, हम अपने शोहदा को भी आज याद करते हैं कि वो दूर है तो क्या हुआ, दिलों में है बसा हुआ। डिस्टेंस डज नॉट मैटर, फासले हमारे लिए कोई मानी और कोई अहमियत नहीं रखते हैं। और जो बात करने की है आज, मुझे ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि मैं अपने मुख्तसर खिताब में, इस पर तो कम से कम तालियां बजनी चाहिए, और उतना ही मुख्तसर खिताब जितना मुझसे पहले आने वालों ने खिताब किया।
मैं भी उतना ही मुख्तसर खिताब करूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आज जो सूरत हाल हमारे सामने है वो नाउ और नेवर की सूरत हाल है। अब नहीं तो फिर कभी नहीं, हुणी नहीं तो फिर कभी नहीं, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ये आखिरी मौका है शायद हमारे पास। बहुत सारे लोग, मुल्क को अनगिनत चैलेंजेस का सामना है, खारिजी खतरात भी और दाखिली खतरात का सामना है। 65 सालों से पाकिस्तान में एडहॉकिज्म, फ्यूडलिज्म, ट्राइबलिज्म और अब तालिबानिज्म, ये मुख्तलिफ इज्म है जो पाकिस्तान में है 65 सालों से। परवेज हुदबॉय ये कह रहे थे कि यहां 30 या 300 लोग होते तो मुझे बात करने में, लेकिन जब ये अपनी बात करके वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, 10,000 तो सिर्फ कुर्सियां इस पंडाल में बिछी हुई हैं। 10,000 लोग, ये सब कह दो कि पॉलिसी अल्ताफ भाई की है। आपने भी सब कहा और लोगों ने भी सब सुना, क्योंकि वो भी समझते हैं। आप इतना अटेंटिव क्राउड, मुझे किसी और सियासी जमात का कोई जलसा, मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम दिखा दें जहां लोग आपस में बातें ना कर रहे हों, जो स्टेज से बात कही जा रही हो उसे सुन रहे हों। ये कायदे तहरीक अल्ताफ भाई का नज़्म ज़ब्त है। ये हमारे शोदा की कुर्बानियों का खिराज है। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान की तरफ वापसी का सफर है, जिन्होंने इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम की बात की थी। ये इत्तेहाद भी आपको सामने नजर आ रहा है, ये तंजीम भी आपको सामने नजर आ रही है, ये नज़्म ज़ब्त भी आपको सामने नजर आ रहा है, और ये यकीन महकम भी इन रोशन आंखों से, इन चमकती दमकती पेशानियों से, इन नौजवानों के चेहरों से वो यकीन महकम भी हमें नजर आ रहा है। तो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने इन्हें ये एतमाद दिया है, ये यकीन, ये एतमाद कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने दिया है। मुल्क की इस्तेहकाम, कौमी सलामती और बका को आज अनगिनत है। आज वक्त नहीं है हमारे पास, पाकिस्तान की सियासत में ऐसा और मुबाहिसा हो रहा है कि एक बॉल पर आउट हैं। कायदे तहरीक अल्ताफ भाई का ये कहना है कि वो सिर्फ बात नहीं करते, व्हाट टू डू, क्या करना है और क्या होना चाहिए उसकी तो सब बात करते हैं, लेकिन हाउ टू डू, किस तरह ये तब्दीली अमली शक्ल इख्तियार करेगी। मैं समझता हूं कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के नजरिए मंशूर और प्रोग्राम के अलावा किसी और के पास वो प्रोग्राम नहीं है जिसके जरिए से सही और हकीकी मानों में पाकिस्तान को एक आजाद और खुद मुख्तार ममलिकत बनाया जाए। कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के पास ही ये प्रोग्राम है। अल्ताफ भाई यही कहते हैं कि अब एक बॉल पे सारी विकेटें लेनी होगी, सिर्फ 1-2 विकेटें लेने से काम नहीं चलेगा। ये कहते हैं पर सबको आउट, एक बॉल पर नहीं, क्या आखिरी बॉल है हमारे पास बची, ये आखिरी पास बची है। शारजा का छक्का लगाना होगा और इस एक बॉल पर सबको आउट करना होगा। ये तो दुनिया कहती है कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। आज अल्ताफ भाई ने ये जो शफाफ
तालाब यहां पर जमा किया है, लोगों को मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक किया है, तो उन्होंने इस मुहावरे को अमली तौर पर उल्टा करके दिखाया है कि एक मछली सारे तालाब को अच्छा कर सकती है। यह अक़ीदे तहरीक अल्ताफ भाई का नजरिया और फलसफा है। यह कह देना तो बहुत आसान है कि बुराई बहुत आसानी से सरायत करती है और अच्छाई को फैलाने में बहुत वक्त, बहुत तगोदो और बहुत मेहनत लगती है। किताब ये कहते हैं कि एक अच्छी मछली सारे तालाब को अच्छा करती है। इसीलिए अल्ताफ भाई का ये कहना है कि अब एक बॉल पर सारी विकेटें लेनी होगी, एक बॉल पर सारे फ्यूडल्स को, मरात याफ्ता तबके को, सरमायादारों और जागीरदारों को, सबको एक बॉल ही पर हमें आउट करना होगा और पाकिस्तान की सियासत से बाहर करना होगा। एक बॉल पर हमें यह करना होगा और वाज़े रहे कि फिर हमारी सफों में कोई ऐसा शख्स नहीं है, हमारी सफों में कोई ऐसा शख्स नहीं होना चाहिए जो मैच फिक्स करता हो, जो जानबूझकर नो बॉल करता हो और नो बॉल कराता हो। हमने अपनी सफों से नो बॉल करने वालों और नो बॉल कराने वालों को भी बाहर निकाल दिया है। हमारी सफ में कोई मैच फिक्स करने वाला भी नहीं है, कोई नो बॉल कराने वाला भी नहीं है। और ये इसी एक बॉल पर कायदे तहरीक अल्ताफ भाई आज शोदा को खिराजे अकीदत देने के लिए उनके खून को, उनके लहू को राजा होने से बचाने के लिए, जिस लहू में उनके अपने घर का लहू, शहीद नासिर हुसैन और शहीद आरिफ हुसैन का लहू भी जिसमें शामिल है, ऐसी तहरीक जिसमें अल्ताफ भाई के भाई और भतीजे का लहू शामिल है, जिसमें हजारों शोहदा का लहू शामिल है, जिसमें नो बॉल कराने वालों को बाहर के दरवाजे दिखा दिए गए हैं, जो एक बॉल पर सारी विकेटें लेने और सबको आउट करने का अज़म रखते हैं। मैं समझता हूं कि वही लोग पाकिस्तान को, वही कायद पाकिस्तान को 21वीं सदी में ले जा सकता है। वही शख्स पाकिस्तान को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बना सकता है। ये हमारा ईमान है। मुस्तकिल तब्दीली कैसे रूनुमा होगी? मुस्तकिल तब्दीली के लिए आज का ये पिंडाल इस बात की गवाही देता है। ये 10,000 कुर्सियां तो सिर्फ इस पिंडाल में हैं, हजारों ऐसे नौजवान हैं जो बाहर पिंडाल से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हजारों ऐसे लोग हैं, नौजवान हैं जो बाहर भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आज अल्ताफ भाई का पैगाम भी यही है कि पाकिस्तान में मुस्तकिल तब्दीली और पाकिस्तान में पायदार तब्दीली उसी वक्त बर्पा होगी जब हम पाकिस्तान के अवाम को बिलअमूम और पाकिस्तान के नौजवानों को बिलखुसूस बाइख्तियार बनाएंगे, उन्हें एम्पावर करेंगे और पाकिस्तान का नज़्म नस्क भी नौजवानों के हाथों में देंगे। ये कायदे तहरीक अल्ताफ भाई का आज के यौम शोदा कॉन्फ्रेंस के मौके पर पैगाम है। वो ये समझते हैं कि जब 22 साल की उम्र में उन्होंने या 20 साल की उम्र में उन्होंने ऑल पाकिस्तान मुहाजिर या मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। अल्ताफ भाई ने 20 साल की उम्र में इस फिनोमिना को कायम किया। ये फिनोमिना तो मिडिल क्लास, अर्बन, एजुकेटेड फिनोमिना, इसका आगाज ही नौजवानों से हुआ था, उनकी तहरीक से हुआ था, उनकी मोबिलाइजेशन से हुआ था। और यही वो तहरीक थी, यही वो मोबिलाइजेशन थी जिसने
पाकिस्तान को कायम किया था। और आज अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है, पाकिस्तान को कोई बना सकता है और 21वीं सदी में ले जा सकता है, तो ये मेरे कायद तहरीक अल्ताफ भाई का यकीन है, यकीन कामिल है कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमान और पाकिस्तान के नौजवान ही पाकिस्तान को जो 21वीं सदी में ले जा सकते हैं, पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। और सही आजादी और खुद मुख्तारी, याद रखें कि माशी आजादी और खुद मुख्तारी है, माशी आजादी और खुद मुख्तारी के बगैर। इसीलिए आज हमने कोई बात किसी के खिलाफ नहीं की, हम किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई सिस्टम से है, हम निजाम को तब्दील करना चाहते हैं। हम बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के एक एक शहरी को पाकिस्तान की पॉलिसी में, फैसले में शरीक करना चाहते हैं। हम सियासी जमहूरी अमल में नौजवानों को शामिल करना चाहते हैं। हम सियासी जमहूरी अमल में, हम पाकिस्तान के इख्तिसादी तरक्की के अमल में हम नौजवानों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और ये अल्ताफ भाई का यकीन देखिए कि 20 साल की उम्र में ये पहली तहरीक और सियासी जमात है पाकिस्तान की कि जहां बच्चा ऑर्गेनाइजेशन, तलबा ऑर्गेनाइजेशन पहले कायम होती है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या वालिदैन की जमात बाद में पैदा होती है। एपीएमएस पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या महाजिर कौमी मूवमेंट कायम हुई थी, एपीएमएस पहले कायम हुई थी। एपीएमएसओ ने एमक्यूएम को बनाया है। एपीएमएसओ ने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन थी जिसने पाकिस्तान को बनाया था। अलीगढ़ को कायदे आजम ने मुस्लिम लीग का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का असलहा खाना करार दिया था। जहां से तहरीक चली थी तो ये पाकिस्तान बना था। आज पाकिस्तान बचाने के लिए भी अल्ताफ भाई ने 28 साल की उम्र में मुझे कराची की मेयरशिप दी और जिम्मेदारी सौंपी जब कराची 1 करोड़ के लगभग थी। मुस्तफा कमाल भाई को 33 साल की उम्र में कराची की कुंजी सौंपी और उन्हें कहा कि कराची की तामीर और तरक्की करो, मेरिट पे करो, सबकी खिदमत करो, किसी के साथ इम्तियाज ना करो, किसी के साथ नाइंसाफी करो। और आप देखें 4 साल में किस तरह कराची का नक्शा बदला गया। आज अगर पाकिस्तान का नक्शा भी बदलना है तो वजारत उज़्मा हो या सदारत का ओहदा हो या गवर्नर का, गवर्नर भी अगर अल्ताफ भाई ने लगाया सिंध के पेचीदा सूबे का, तो वो भी 36 साल की उम्र में डॉक्टर इशरतुल इबाद भाई को। ये है यूथ फिनोमिना, ये है नौजवानों का फिनोमिना, ये है एजुकेटेड फिनोमिना, ये इल्म और आगही के चिराग हैं। जहां अल्ताफ भाई ने ये सिखाया है कि इल्म को बांटना है, इल्म को देना है, इल्म में सबको शरीक करना है, एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन करना है, क्योंकि दूसरा चिराग रोशन करके पहले चिराग की रोशनी में कोई कमी वाकई नहीं होती। अल्ताफ भाई ने एमक्यूएम के कारकुनों को चिराग से चिराग जलाने के काम पर लगा दिया है और एमक्यूएम के कारकुनान तालीमी इदारों में, नौजवान तालीमी दरसगाहों में यही काम सरअंजाम दे रहे हैं। चिराग से चिराग रोशन हो रहा है। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तालीम, सेहत, सोशल डेवलपमेंट, मईशत हमारी तरजीह है, एनर्जी हमारी तरजीह है, लोड शेडिंग का खात्मा, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई का खात्मा, ये उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब पाकिस्तान के मुंतखब ऐवानों में अक्सरियत उन लोगों की पहुंचेगी जो ट्यूशन पढ़ाकर डॉक्टर बनते हैं, जो ट्यूशन पढ़ाकर एक इनकलाब बर्पा करते हैं। कायदे तहरीक अल्ताफ भाई जहां ज़माने तालिब इल्मी में तालिबान थे, इल्म हासिल करते थे, इल्म के तालिब थे, वहीं पर ट्यूशन भी पढ़ाते थे और अपनी पॉकेट मनी, अपनी मेहनत से खुद रेस करते थे। इस तरह पाकिस्तान बना था, इस तरह तहरीक बनती है, इस तरह मुल्क की तामीर होती, जहां सेल्फ मेड लोग हों, सेल्फ मेड लोगों के हाथों में पाकिस्तान को देना होगा।
नौजवानों के हाथों में पाकिस्तान को देना होगा। और ये जितनी जमातें हैं, ये जो वजारत उज़्मा के लिए उम्र की कैद है, मेरे ख्याल में 45 साल की कैद है कि 45 साल से ऊपर होगा तो शायद वो सेनेटर बन सकता है और वो पाकिस्तान का वजीर आजम हो सकता है। आज शोदा को खराज अकीदत पेश करते हुए यौम शोदा पर कायदे तहरीक अल्ताफ भाई और एमक्यूएम की तरफ से हम ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के लिए भी उम्र की इस कैद को कम करके 35 साल तक लाया जाए। और अगर 35 साल का कोई नौजवान भी अगर ये अहलियत रखता हो कि वो पाकिस्तान की क़यादत कर सकता हो, पाकिस्तान को तामीर कर सकता हो, तो फिर वजारत उज़्मा उस नौजवान के हवाले करनी चाहिए। है या नहीं है? तो ये इनकलाब है, ये तब्दीली है कि जहां पर आप ये कहें कि हम पार्टी के सरबराह हैं, हमने पार्टी बनाई है, लेकिन हमें वजारत उज़्मा नहीं चाहिए, हम वजारत उज़्मा के कैंडिडेट नहीं हैं, हम सदारत के ओहदे के कैंडिडेट नहीं हैं, हम गवर्नर नहीं बनना चाहते, हम वजीर आला नहीं बनना चाहते। ये आवाज अगर कहीं से आती है तो सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम में से आती है। अल्ताफ भाई न सदर के ओहदे के उम्मीदवार हैं, न सदर बनना चाहते हैं, न वो वजीर आजम बनना चाहते हैं। ये है हकीकी तब्दीली। मेरिट पर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाए, यह है डेमोक्रेसी। सेक्टर, यूनिट, जोन, शोबों से, इलाकों के लोगों से यह सवाल पूछा जाए कि आप बताएं आपके इलाके का एमएनए कौन होना चाहिए, आपके इलाके का एमपी कौन होना चाहिए। यह है असल डेमोक्रेसी का तस्वुर, यह है असल जमहूरियत, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसमें लोग खुद इलेक्शन के वक्त एमएनए और एमपीए का इंतखाब नहीं करते। हमारे यहां एमएनए और एमपीए का इंतखाब इलेक्शन से पहले हल्के के अवाम, यूनिट और सेक्टर और तंजीम की मदद से जो है वो उम्मीदवारों का जो है वो इंतखाब करते हैं। ये है तब्दीली, ये पूरे मुल्क में तब्दीली आएगी। सारी सियासी जमातों के सरबराह ये कहें कि ना वो सदर के ओहदे के उम्मीदवार हैं, ना वो वजारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार हैं, ना वो गवर्नर बनना चाहते हैं, ना वो वजीर आला बनना चाहते हैं, वो मुल्क में तब्दीली लाना चाहते हैं, वो मुल्क के निजाम को बदलना चाहते हैं, फरशुदा गले सड़े वडेराना जागीरदाराना निजाम को बदलना चाहते हैं, लोगों को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं, उनको हर अमल में शरीक करना चाहते हैं। पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम को पाकिस्तान की तामीर में और तरक्की में हिस्सा देना चाहते हैं। यह है असल तब्दीली, यह है मुस्तकिल तब्दीली, जिससे कि ये इस मुल्क में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का भी खात्मा होगा, मजहबी रवादारी भी कायम होगी, फिरका वाराना हमआहंगी भी कायम होगी। और जो मजहबी रवादारी और फिरका वाराना हमआहंगी को खत्म करना चाहते हैं, जो साजिशें करना चाहते हैं, उनको भी, वो भी बेनकाब होंगे, उनका भी मुंह काला होगा और उनका भी खात्मा होगा। ये है तब्दीली का अमल, जहां लैंड रिफॉर्म्स के जरिए फ्यूडलिज्म को आप खत्म करें, जहां पर आप खवातीन को माशरती और माशी तरक्की में बराबर के हुकूक दें। आज आप देखें जितनी बेटियां बहनें हमारी यहां पर बैठी हुई हैं, आज के इस प्रोग्राम में मेरी ये ख्वाहिश थी कि आज के इस प्रोग्राम से अगर कायदे तहरीक अल्ताफ भाई खिताब करते, कायदे तहरीक अल्ताफ भाई आपसे बात करते, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये कोशिश है कि कायदे तहरीक अल्ताफ भाई का पैगाम कायदे तहरीक अल्ताफ भाई खुद बनफ्स नफीस जो है वो आपको दें। हम ये समझते हैं कि इकोनॉमी है, एनर्जी है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, एम्पावरमेंट है, ये 5-6 ई हैं, इन्हें हमें जो है वो आगे बढ़ाना होगा। नो बॉल कराने वालों पर नजर रखनी होगी और ये हमें याद रखना है कि हम माजी में नहीं रहना चाहते कि शिकवाए तीरगी शब्द से तो कहीं बेहतर है, शिकवाए तीरगी शब्द से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाएं। क्या चॉइस है हमारे पास कि डू वी वांट टू कीप ऑन कर्सिंग डार्कनेस, क्या हम अंधेरों को, तारीकियों को, तीरगी को हम रोते रहें, कोसते रहें,
या अपने हिस्से की एक शम्मा जलाएं और लोगों को मुस्तकबिल के रास्ते दिखाने की तैयारी करें। तो अल्ताफ भाई ने भी ये कहा है कि शिकवाए तीरगी ये शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाएं, और जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। मैं कोई सखील किस्म की सियासी गुफ्तगू भी नहीं करना चाहता। आज शोहदा को अकीदत पेश करने का दिन है कि हमारे ताल्लुकात बेशक सदर बुश और सदर ओबामा की, ये आखिरी बात मैं कर रहा हूं, सदर बुश या सदर ओबामा के अमेरिका से ख्वाह कैसे ही हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। सदर बुश या ओबामा के अमेरिका से आपके ताल्लुकात कैसे ही हो, लेकिन हमें हर हाल में बिल गेट्स के अमेरिका से ताल्लुकात को उस्तवार रखना है। हमें स्टीव जॉब्स, हमें बॉब होप और जॉनी कैश के अमेरिका से ताल्लुकात को उस्तवार रखना है। हमें डैन जियाओपिंग के चाइना के मॉडल को पाकिस्तान में लाना है। महातिर मोहम्मद, ली ग्वांग हू सिंगापुर का और नेल्सन मंडेला के मॉडल को पाकिस्तान में लाना है, और इस यकीन और एतमाद के साथ लाना है कि अपने हाथों में लिए शम्मे यकीन आएंगे, अपने हाथों में लिए शम्मे यकीन आएंगे। अब पैगंबर नहीं आएंगे, हम ही आएंगे। हमें ये एतमाद करना होगा अपनी जात पर और अल्लाह ताला की जात पर, सबसे पहले कायद पर और अपनी जात पर। और हमें निकलना होगा कि प्यास तेरी समंदर भी हो जाएगी, रोशनी तेरे अंदर भी हो जाएगी, एक बस काम कर, मशले थाम कर पानियों में उतरने का फन सीख ले। अब यह बात है कि बिल गेट्स का कोई विजिट पाकिस्तान का नहीं होता। 4 साल के लिए पाकिस्तान का नज़्म नस्क कायदे तहरीक के किसी उम्मीदवार को दे दें, मुस्तफा कमाल भाई को दे दें, या मुस्तफा कमाल भाई की तरह किसी साथी को दे दें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1 साल के अंदर हम लाहौर में सिलिकॉन वैली का जाल बिछा देंगे, हम पिशावर, कोयटा और हम लाहौर को साइबलोर, साइबर आईची, साइबर शावर और साइबर एटा बना देंगे। यहां के रीजन में सिर्फ बेंगलोर ही साइबलोर नहीं बन सकता, यहां सिर्फ हैदराबाद, दक्कन ही साइबराबाद नहीं बन सकता, ये कराची भी साइबर आईची बन सकता है। ये हमारा कमिटमेंट है, ये अल्ताफ भाई का विजन है। हमें पाकिस्तान को भी साइबर पाकिस्तान बनाना है। हमें पाकिस्तान को भी दुनिया की 60 में हम एक लीडिंग नेशन थे, हम मुल्क थे। 60 के बाद हमारी तरक्की को क्या हुआ मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मसला क्या है कि अल्ताफ भाई की यही बात बर्दाश्त और तहम्मुल, अल्ताफ भाई ने यही कहा। यहां दोस्त की बात की जुनेद ने, दुश्मन की बात की तो अल्ताफ भाई यही कहते हैं कि हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। ये पॉलिसी है एमक्यूएम की, इसे समझने की जरूरत है। हम डायलॉग के लोग हैं, हम मकालमे के लोग हैं, हम बर्दाश्त और तहम्मुल की सियासत, रोज़े अव्वल से हमारा यकीन बर्दाश्त और तहम्मुल की सियासत में है। हम हर तनकीद को खुले दिल से और कुशादा दिली से जो है वो हम हर तनकीद को जो है वो सुनते हैं और उस पर तवज्जो देते हैं और तनकीद को अपने लिए इस्लाह अहवाल का जरिया समझते हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं, हमसे भी गलतियां हुई, हम ये दावा कभी नहीं करते कि हम परफेक्ट हैं, हमने सारी चीजें सही की हैं, लेकिन हम तनकीद को वेलकम करते हैं। हम तनकीद, ये आज शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ये सयाक व सबाक के साथ सारी बातों को रिकॉर्ड पर लाया जा रहा है। हाउ टू ब्रिंग द चेंज, हाउ टू एम्पावर द यूथ, हाउ टू एम्पावर द विमेन, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, माइनॉरिटीज को, अकलियतों को अगर हम अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे तो यहां परवेज हुदभॉय ने यह बात कही थी कि फिर यह पाकिस्तान कायम नहीं रहेगा। जो इंसाफ और मसावत का दावा है वो कायम नहीं रहेगा, और जो मुल्क और रियासत इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं करती वो रियासतें कभी हुर्राए अर्ज पर कायम नहीं रहती। मैं ये समझता हूं कि
जरूरत इस बात की है, मैं अहलियान पंजाब को भी यह कहता हूं कि तुसी सभी नू आजमाया, सानू भी एक बारी आजमाओ। तुसी सभी नू आजमाया, सानू भी एक बारी आजमाओ, जे तानू स्वाद ना आवे तो पैसे वापस। ये मनी बैक गारंटी है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि एक बॉल से सारी विकेटें गिरानी है, अब हमारे पास वक्त नहीं है। हमें मुस्तकिल तब्दीली लानी है, फ्यूडलिज्म को गिराना है, ट्राइबलिज्म को खत्म करना है, पाकिस्तान को सही और हकीकी मानों में आजाद कराना है। हम जोग्राफियाई तौर पर तो शायद आजाद हुए 47 में, लेकिन नजरियाती तौर पर शायद जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का नजरिया था वो मुक़य्यद हो गया, वो कैदोबंद में चला गया। हमें उस नजर 12 अगस्त की कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर, जिसमें रियासत उसी नजरिए को, हमें उसी रियासत के ढांचे को पाकिस्तान में कायम करना है जो 11 अगस्त की कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर में है। अल्ताफ भाई उसी के दाई, उसी के अलम बरदार हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि दिफाई तौर पर हम कितना भी मजबूत हो जाएं, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, हमें मजबूत और खुद मुख्तारी हमें हासिल करनी होगी। और ये जो हम बातें करते हैं इसके नतीजे में हमें पता है कि हमें किन चैलेंजों का सामना करना पड़ता है, किन इल्जामात का सामना करना पड़ता है कि गुलों को खार लिखा जा रहा है। ये इस बार क्या लिखा जा रहा है? गुलों को खार लिखा जा रहा है, ये इस बार क्या लिखा जा रहा है? डुबोकर उंगलियां मेरे लहू से मुझे गद्दार लिखा जा रहा है। तो ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन अल्ताफ भाई ने हमें एक डायरेक्शन दी है, अल्ताफ भाई ने हमें एक सिमत दी है। हमें लोगों को तंजीम के बगैर कोई भी तब्दीली नहीं है जब तक तंजीम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तंजीम का नेटवर्क नहीं है, शोबे नहीं है, आप ऑर्गेनाइज नहीं है, पॉलिट ब्यूरो आपके पास नहीं है, अच्छे उम्मीदवार नहीं है, अच्छे उम्मीदवारों का सिलेक्शन नहीं है, अच्छे उम्मीदवारों को सिलेक्शन का तरीका नहीं है, लोगों में से, अवाम में से लोगों को मुंतखब नहीं किया जा रहा। इंतखाबात लड़ने के लिए कोई तब्दीली फिर मुस्तकिल तब्दीली नहीं है। मुस्तकिल तब्दीली के लिए हाँ जाके जिया की हमको भी तशवीश है, लेकिन क्या कीजिए। हाँ जाके जिया की हमको भी तशवीश है, लेकिन क्या कीजिए। जो रावी उधर को जाती है मक्तल से गुजर के जाती है। हमें मालूम है कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में रुकावटें भी आएंगी, कांटे भी बिछाए जाएंगे, आग और खून के दरिया भी पार करने होंगे, लेकिन हमें उन सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा और शोहदा से हमें यह अहद करना होगा, यह कमिटमेंट करना होगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं एक मिसाल देकर कि पाकिस्तान के 98% महरूम लोगों और तबकों का असल मसला यह है कि एक नफ्सियाती हिजाब है, एक बैरियर है कि मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। लेकिन अल्ताफ भाई का ये यकीन है, ये एतमाद है कि इस मुल्क में तब्दीली आ सकती है, एक मुस्तकिल तब्दीली आ सकती है और एक तरीके से वो तब्दीली आ सकती है। ये अल्ताफ भाई ने कहा है, बिल्कुल यही मैसेज दिया है बेटियों को और बहनों को। जब मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं और 2 अशार आपकी नजर करूंगा और शोहदा के हवाले से, इस माह मुकद्दस के हवाले से कि फिजाओं में ना ढूंढू तू ना ही मकबरों में तलाश कर, फिजाओं में ना ढूंढू तू ना ही मकबरों में तलाश कर, जो सलीब पर हैं सजे हुए मुझे उन सरों में तलाश कर। मैं अनल हक की पुकार हूं ना इधर उधर तलाश कर, मैं अनल हक की पुकार हूं ना इधर उधर तलाश कर, मैं हूं नाम लेवा हुसैन का मुझे खंजरों में तलाश कर। पाकिस्तान जिंदाबाद, शोदाए तहरीक पाकिस्तान, शोदाए करबला, शोदाए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिंदाबाद, कायदे तहरीक अल्ताफ भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।